Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today our specific it's the third lecture, and today we discuss on two sections, section 9 and section 10. Section 9 for immovable property and section 10 for movable property. Now we come on section 9. Sued by person dispossessed by immovable property. If any person is dispossessed without his consent of immovable property, otherwise than in due course of law, he or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit. Nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof. No suit under this section shall be brought against the federal government or any provincial government. No appeal shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed. अब सेक्शन 9 जो है वो किस प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है, किस प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है? वो बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ऐसा पर्सन जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाए, उसके लिए क्या रिलीफ है, वो सेक्शन 9 के अंदर। अब इसमें सेक्शन 9 के अंदर जो इसका प्रिंसिपल है, जिसको हम बात कह सकते हैं कि किस वजह से ये है, उसके लिए कहा जाता है कि सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक राइट प्रोवाइड्स अ समरी प्रोसीजर। अब ये क्या है? दिस इज अ समरी प्रोसीजर for grant of relief to person dispossessed from the immovable properties without their consent, यानी उसकी कंसेंट के बगैर उसको जबरदस्ती immovable प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाए। उसके लिए वो क्या होगा? कोर्ट के अंदर आएगा। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू डिस्करेज फोर्सिबल डिस्पोजिशन। अब इसका पर्पस क्या कह रहे हैं कि जो फोर्सिबली किसी को डिस्पोजेस करने को इनकरेज किया जाए, डिस्करेज किया जाए, ताकि उसको फोर्सिबली किसी को डिस्पोजेस ना किया जाए। Where there has been no forcible disposition, section 9 of the specific real act would not apply. अगर किसी को फोर्सिबल डिस्पोजेस नहीं किया जाता है, उस सूरत में सेक्शन 9 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। The cases in which this section comes into operation are those there where the plaintiff are deprived of the actual physical possession of the immovable property. In other words, before a person can come under section 9, he has to show that he had actual physical possession of the immovable property from which he was dispossessed without his consent by the defendants within 6 months prior to the institution of this suit. अब सूट दाखिल करने से विद इन 6 मंथ का पीरियड दिया गया है कि जिसमें अगर किसी शख्स को कोई शख्स इमूवेबल प्रॉपर्टी से के ऊपर पोजीशन में है और उसको कोई और डिस्पोजेस करता है, तो उस सूरत में जिस शख्स को डिस्पोजेस किया जाएगा वो शख्स विद इन 6 मंथ कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 के तहत रिलीफ के लिए आ सकता है। अब डिक्री, अब इसके अंदर जो टाइम पीरियड के जो डिस्कस किया गया है वो है 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, यानी लिमिटेशन पीरियड इसका है विद इन 6 months. Again, a decree under section 9 can be passed when it is proved that the plaintiff was dispossessed from the property in dispute by the defendant otherwise than in due course of law. अब किसी को ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तहत डिस्पोजेस के तहत उससे पोजीशन ली जाती है, वो इस सेक्शन के एम्बिट में नहीं आएगा। अब कोर्ट में प्लेंटिफ को साबित करना है कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोजेस किया गया है उसकी कंसेंट के बगैर और बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के, उस सूरत में वो इस कोर्ट में आ सकता है सेक्शन 9। अब उसके टाइम पीरियड क्या है? विद इन 6 months of the institution of the suit. In such case, the court has no jurisdiction to go into the question of the title of the parties and can only determine whether the defendant trespassed in the property in dispute within 6 months of the date of filing the suit and decree for restoration of the possession. अब यहाँ टाइटल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी ये टाइटल को डिस्कशन इस सेक्शन 9 में हम टाइटल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब को शेयरर्स की बात करते हैं। व्हाट अबाउट द को शेयरर? को शेयरर, अब को शेयरर क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी में 2 से 3 लोग हिस्सेदार हैं, तो बोथ आर दे आर ऑल कॉल्ड को शेयरर। को शेयरर इन एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द पोर्शन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी for a long period cannot be dispossessed by another co-sharer except by bringing a suit for partition. अब co-sharer को आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते विदाउट, मतलब यानी जब तक पार्टीशन सूट फॉर पार्टीशन के तहत दाखिल करके आप को-शेयरर को
कि उसका शेयर दे सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकते। को शेयरर के लिए हमेशा पार्टीशन का केस दाखिल करके को शेयरर अपना अपना शेयर लेंगे। ये सेक्शन 9 को इधर हम नहीं कर सकेंगे। सेक्शन 9 के तहत हम यहाँ उसके खिलाफ केस दाखिल नहीं कर सकते। अब ऑब्जेक्ट की बात हम करते हैं। हर सेक्शन का, हर एक्ट का, हर चीज का एक ऑब्जेक्ट होता है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन 9 का? द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। अब लोगों को डिस्करेज करना है कि जनाब कानून आप अपने हाथ में लेके अपनी मर्जी से किसी को बेदखल करें, किसी को रिजेक्ट करें या जो भी करें, उसको क्या करना है? डिस्करेज करना। नो अपील। अब ये बात करते हैं, दिस सेक्शन प्रोवाइड ए क्विक रेमेडी फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, यानी क्विक रेमेडी फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। पोजीशन की रिकवरी के लिए ये सेक्शन जो है क्विक रेमेडी प्रोवाइड करता है। No appeal or review lies as against a decree. In such cases, the party adversely affected has only an alternative remedy by way of a regular suit for establishing his title and recovering position. If, however, there are any legal ground, a revision would lie to the High Court under Section 115. अब ये कहता है कि जनाब अपील की बात नहीं करें, रिव्यू की आप बात नहीं करें, इस जो भी सेक्शन 9 के तहत जो भी डिक्री होती है उसके तहत आप, हाँ, टाइटल की बात करते हैं। टाइटल के लिए आप रेगुलर सूट दाखिल करेंगे जिसमें आप अपना टाइटल इस्टेब्लिश करेंगे और पोजीशन के लिए रिकवरी के लिए करेंगे। ये जो सेक्शन 9 है ये ओनली फॉर क्विक रेमेडी फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन की रिकवरी की क्विक रेमेडी है। अब इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सेक्शन 9 के? सेक्शन 9 के इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं? देयर आर 4 इंग्रेडिएंट्स। Accordingly, there are 4 ingredients. 4 ingredients कितने? क्या 4 ingredients हैं? वो क्या हैं? पर्सन सुइंग मस्ट हैव बीन डिस्पोज, यानी जो शख्स कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 के तहत आ रहा है वो शख्स हो जिसको हकीकत में डिस्पोजेस किया गया हो। नंबर 2, सच डिस्पोजिशन मस्ट बी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये डिस्पोजिशन किस में होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है। नंबर 3, डिस्पोजिशन शुड बी विदाउट कंसेंट। अब ये जो डिस्पोजिशन है उसकी कंसेंट के बगैर है, यानी उसकी कंसेंट इसमें शामिल नहीं है, विदाउट हिज कंसेंट। 4th क्या कहता है? डिस्पोजिशन शुड बी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अब ये डिस्पोजिशन है, एक तो होता है कोर्ट के जरिए हम किसी को डिस्पोजिस करते हैं, यहाँ ये बात करते हैं कि कोर्ट के तहत डिस्पोजिस नहीं, यानी विदाउट, अब एक शख्स को कोर्ट के तो डिस्पोजिस किया गया है इसकी प्रॉपर्टी से, तो वो सेक्शन 9 के तहत नहीं आ सकता है, यानी उसकी कंसेंट के बगैर इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती उसको उठा दिया जाए तो ये शुड बी कम इन दिस बोर्ड। अब यहाँ कहते हैं एसेंशियल ऑफ ए सूट अंडर दिस सेक्शन। एसेंशियल जिस तरह से हमने क्या बात की, पोजीशन, प्लेंटिफ वाज इन पोजीशन विद इन 3 months डिस्पोजिस किया गया, ये इसकी क्या है? एसेंशियल्स हैं, यानी जिसको डिस्पोजिस किया गया है वो हकीकत में वो उस प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन में थी और उसको उसकी कंसेंट के बगैर डिस्पोजिस किया गया और वो विद इन 3 month कोर्ट के अंदर आकर सेक्शन 9 के तहत केस दाखिल कर सकता है। अब कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स, ये दिस इज also very important. Consolidation, suit for declaration of title cannot be consolidated with a suit for position under section 9 of specific relief act. Procedure being entirely different in both of the cases, appeal in a suit for title is competent while in a suit of position revisions lie. यानी सेक्शन 9 के तहत जो आप केस दाखिल कर रहे हैं वो, और जो रेगुलर सूट्स हैं फॉर पोजीशन या जो भी है वो इससे डिफरेंट है। अब अपील जो है टाइटल के लिए आप केस जो दाखिल करते हैं उसके लिए अपील की जाएगी, जबकि सूट फॉर पोजीशन जो होगा उसमें रिवीजन दाखिल की जा सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है इसके भी थोड़ा सा हम चलते चलते इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। This term immovable property as defined in the General Clauses Act includes, General Clauses Act में immovable property की क्या definition है?
includes lands, benefits to areas out of land, and things attached to the earth. Things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, यानी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन जब ये डिस्कशन के दौरान ये पॉइंट आया तो मैंने कहा कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के तहत आपको ये थोड़ा सा बता दूँ। अब सेक्शन 9 डज नॉट बार अ रेगुलर सूट टू एस्टेब्लिश टाइटल। अब टाइटल डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात करते हैं, एक सूट फॉर सेक्शन 9 के तहत एक केस दाखिल हो चुका है, लेकिन सेक्शन 9 के तहत अगर केस दाखिल हो चुका है तो दूसरा सूट जिसमें आप अपने टाइटल को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसका बार नहीं है, यानी वो उस केस आप दाखिल कर सकते हैं। क्यों? किसके लिए? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाइटल, यानी अपने टाइटल को, अपने राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कि जनाब मैं लॉफुल इसका ओनर हूँ या व्हाट्सएवर। लेकिन इलीगल ये जो सेक्शन 9 है ओनली 3 and 2 पॉइंट्स के लिए होता है। एक शख्स को उसकी कंसेंट के बगैर ज़बरदस्ती डिस्पोजेस कर दिया जाए प्रॉपर्टी में, और वो शख्स विद इन 6 मंथ कोर्ट के अंदर आके सेक्शन 9 के तहत रिलीफ ले सकता है। सेक्शन 9 के अंदर टाइटल वगैरह को डिस्कस नहीं किया जाता। अब इसमें क्या कहते हैं, सेक्शन 9 के तहत जो भी डिसीजन होता है, जो भी डिसीजन हो व्हाट्सोएवर, उसकी ना तो अपील होगी ना रिव्यू होगा। No appeal lie from an order passed in execution of a decree in a suit under this section. इसी तरह only deciding suit filed under section 9 of the specific relief or ignored perusal of the relevant record and failed to apply its mind to distinguish between position in his own right and position as a tenant, or to the question whether the respondent was a tenant or employee in respect of the suit premises. Such omission had constituted material irregularity within terms of section 115 Civil Procedure Code. Retrial of the case order in circumstance, यानी इसकी रिवीजन हो सकती है, बाकी अपील और रिव्यू इसके अंदर नहीं हो सकती। इस तरह से इंजंक्शन भी इसके अंदर हो सकता है। एपेक्स कोर्ट के लिए आप दाखिल कर सकते हैं। सेक्शन 9 में एक है डिक्री। अब आती है एक, अच्छा अब सवाल ये आता है कि सेक्शन 9 के तहत जो केस दाखिल किया जाता है उसके अंदर आप रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं। Under section 9, a court cannot pass a decree for means forfeits prior to the suit, nor can order for means forfeit during the pendency of the suit be made under this section, nor can a receiver be appointed for collection of the means forfeit. कह रहा है, ये सेक्शन कहता है nor can a receiver be appointed for collection of the means forfeit के लिए आप जो है रिसीवर अपॉइंट नहीं कर सकते। डिक्री, what is the decree and what is the point for section 9? A decree under this section is a decree for position. A decree under this section is a decree for position within the scope of under order 21 rule 97 सिविल प्रोसीजर कोड। यानी इस सेक्शन के तहत जो डिक्री पोजीशन की होगी वो किसके स्कोप में आएगी? अंडर ऑर्डर 21 रूल 97 सीपीसी। प्लेंटिफ फॉर, फिर सम अप इसका आता है, फॉर ए सूट फॉर पोजीशन अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्लेंटिफ हैज टू प्रूव। अब प्लेंटिफ को क्या प्रूफ करना है सेक्शन 9 के तहत? जब वो कोर्ट के अंदर आया है उसे क्या चीज़ प्रूफ करना है? कौन कौन सी चीज़ें प्रूफ करनी है? उसको क्या करना है? इस पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले तो ये पोजीशन क्या, भाई मैं इस पोजीशन में, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन में था। नंबर 2, डिस्पोजिशन फ्रॉम सच इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय डिफेंडेंट्स। अब वो जो डिफेंडेंट्स है जिसके खिलाफ उसने केस दाखिल किया है उसे ये साबित करना है कि इसने, डिफेंडेंट ने मुझे इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजिस किया है। डिस्पोजिशन बाय डिफेंडेंट विदाउट कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड डिस्पोजिशन विद इन 6 मंथ। अब ये कहता है कि डिस्पोजिस किया है प्लेंटिफ को डिफेंडेंट ने उसकी कंसेंट के बगैर, इसमें ड्यू कोर्स ऑफ लॉ शामिल नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। एंड डिस्पोजिशन विद इन 6 मंथ। अब ये जो केस दाखिल करने से 6 महीने का पीरियड है उसके दौरान उसको डिस्पोजिस किया है। अब टाइम पीरियड यहाँ लिमिटेशन उन्होंने क्या की है? सेक्शन 9 के तहत जिस शख्स को डिस्पोजिस किया जाता है उसकी कंसेंट के बगैर तो उसको
सेक्शन 9 के तहत रेमेडी हासिल है, लेकिन टाइम पीरियड यानी लिमिटेशन क्या है, विद इन 6 मंथ। विद इन यानी जब केस दाखिल करने के लिए आया उससे 6 महीने के ड्यूरिंग का पीरियड है जिसमें उसको डिस्पोजेस किया गया और वो 6 महीने के पीरियड के अंदर कोर्ट के अंदर आता है तो सेक्शन 9 के तहत उसको रिलीफ मिलेगी। अब जनाब ये हो गया सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 के अंदर हमने डिस्कस किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वी शुड कम ऑन सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 9 इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 10 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब there is a word used, recovery of specific movable property. Section 10. A person entitled to the possession of a specific movable property may recover the same in the manner prescribed by the code of civil procedure. अब civil procedure के तहत रिकवरी करेगी क्या है, specific movable property। specific यानी जो specified की गई हो वो movable property है। specified movable property इसका ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेक्शन 10 का ऑब्जेक्ट क्या है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ मींस वेयर बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में ऑब्टेन पोजीशन देयर ऑफ। जनाब मूवेबल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक है, उसकी पोजीशन के लिए वो कोर्ट में आता है सेक्शन 10 के तहत। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफाइड हो यानी स्पेसिफिक हो। ऐसे नहीं हो कि अपनी मर्जी से कोई सी भी बात कर रहे हैं कि जी फला चीज़ शायद ली थी, दी थी, मैंने कुछ चीज़ें उठा ली, ले ली, नहीं। स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए आप आए उसको स्पेसिफाइड करेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9 में क्या था, विद इन टाइम पीरियड क्या था, विद इन 6 मंथ। नाउ क्लेम, वेयर क्लेम इन सूट वाज स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी or for compensation for wrongful taking or injurious or for the wrongful detaining, same article 49 of limitation act 1 limitation 1908 would be applicable। अब यहाँ क्या है, सेक्शन 49 लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप। सेक्शन 49 के तहत क्या टाइम पीरियड है, 3 इयर्स। सेक्शन 49 के तहत टाइम पीरियड कितना है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट according to article 49 is 3 years। अब स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप क्लेम करेंगे 3 इयर्स में, विद इन 3 इयर्स। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या है, विद इन 6 मंथ। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल पॉइंट, वेरी सिंपल। अब यहाँ कहते हैं प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफाइड। प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफाइड। अगेन बात कर रहे हैं भाई स्पेसिफाइड। The specific goods must be ascertained and capable of identification. The nature of the things must continue to be the same। उन्होंने क्लियर कर लिया कि जो चीज़ है स्पेसिफाइड हो, असरटेन्ड हो, कैपेबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो, यानी वो क्लियर हो कि आप किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नो एम्बिगुइटी। ठीक है, रिकवरी फॉर्म है। अब रिकवरी क्या है, द फॉर्म ऑफ रिलीफ गिवन बाय सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल ओनली where the property itself is recoverable. The relief given in is limited to the delivery of the goods. This section doesn't apply if the property has from any cause ceased to be recoverable and the relief sought is damages for trespass only, as in case of loss or misappropriation। ना लॉस हो ना मिसअप्रोप्रिएशन हो, कहते हैं कि रिकवरी जो है given by section is applicable only where the property itself is recoverable। रिकवरेबल होनी चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी जो रिकवरेबल हो, इस तरह से ना हो कि भाई जनाब कोई भी किसी भी किस्म की है वो रिकवरेबल नहीं हो, डैमेज हो, पेरिश हो, वो सब कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब कहते हैं सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। सूट was registered by the defendants containing that plaintiff was not entitled to recover amount in dispute as the same was allegedly emphasized by the plaintiff being a contacting trespasser। Treasurer, plaintiff is inquiry report having been declared innocent by competent authority, suit for recovery of amount was rightly decreed। तमाम शवाहिद को साबित करना उसकी जिम्मेदारी है जिसने कोर्ट के अंदर केस दाखिल किया है। सूट फॉर रिकवरी ऑफ सेल प्राइस ऑफ गुड्स लिमिटेशन।
plant was verified on oath and was supported by receipts of the good statement of the accountant notice replied to such notices sent by the defendants wherein he had admitted his liability to pay and receipts of the part payment made by the defendant to plaintiff suit for recovery of amount filed within 3 years of those documents held was within time. अब वही जहाँ टाइम पीरियड क्या है 3 years. टाइम पीरियड क्या है इसके अंदर घुमा फिरा के क्या है 3 years है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए विद इन 6 month. Now dear student, आज हमने ये 2 सेक्शन डिस्कस किए हैं. One is relating for immovable property and second is movable property. Immovable, what is the immovable property? What is the concept and what is the object of the section 9? Section 9 के objects क्या हैं और ये किस लिए? Immovable property के लिए क्या है? डिस्पोजेस किया हो, इसको आपको साबित करना है, विदाउट कंसेंट हो और विद इन 6 month. और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है 3 years और स्पेसिफिक, यानी प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक एंड ascertained and specific property. Both sections are no doubt too much important, but I try my best to explain you each and everything, and I think so you all students, there are so many questions which in your mind and in my, but my lecture is complete in this regard, and I think so all the question in your mind is clear. I think so. बहरहाल ये आप फिर भी अगर आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप समझ सकते हैं कि जिसके बारे में आप बात पूछना चाह रहे हो तो बेशक आप मुझसे इस बारे में पूछ कर सकते हैं. और आज का ये लेक्चर जो है, थर्ड लेक्चर जो है स्पेसिफिक रिलेटेड का, हम यहीं पे एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 11 के साथ जो है आगे कंटिन्यू करेंगे. सेक्शन, बस ये 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं मूवेबल इमूवेबल के, वो उम्मीद है आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गए हों. इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो हमारा 4th लेक्चर होगा उसमें हम सेक्शन 11 से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे. नाउ